कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद की हरे कृष्ण राम प्रभु हरे कृष्ण सतीश प्रभु अरविंद प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण कुंदन धनंजय अभिनव and Piyush and Rohit. Hare Krishna. हरे कृष्ण। So we'll start Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यां भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके मुक्तिर्भवति नैष्ठिके नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी प्रकारिणे वैष्णवैश्यमनसाय च कृपाशनरं पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो येन श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 2, the contents of Gita summarized, text number 53. Shruti Viprati Pannate Yada Sthashyati Nishchala यदा Samadhavachala Buddhi Sada Yogam Avapsyasi. Translation and purport by His Divine Grace of Charana Ravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Srila Prabhupada ki jai. Translation: when your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. Purport: to say that one is in samadhi is to say that one has fully realized Krishna consciousness. That is, one in full samadhi has realized Brahman, Paramatma, and Bhagavan. The highest perfection of self realization is to understand that one is eternally the servitor of Krishna, and that one's only business is to discharge one's duties in Krishna consciousness. A Krishna conscious person or unflinching devotee of the Lord should not be disturbed by the flowery language of the Vedas, nor be engaged in fruitive activities for promotion to the heavenly kingdom. In Krishna consciousness, one comes directly into communion with Krishna, and thus all directions from Krishna
may be understood in that transcendental state. One is sure to achieve results by such activities and attain conclusive knowledge. One has only to carry out the orders of Krishna or his representative, the spiritual master. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So, first of all, I should thank all devotees here. सारे भक्त लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम भी मेरा। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं, प्रभुपाद उसको समराइज किए हैं बड़े सुंदर भाव से। तो लास्ट हम लोग डिस्कस किए थे टेक्स्ट नंबर 52 में कि हर व्यक्ति को जो इग्नोरेंस डार्कनेस है उससे बाहर आना पड़ेगा। दैट इज द फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट ऑफ इग्नोरेंस। उससे बाहर आएंगे, then we'll actually become indifferent whatever is happening around us. Becoming indifferent means knowing everything as it is. Yesterday I was hearing Prabhupada's lecture. Prabhupada mentions what is Krishna consciousness. When a person is in Krishna consciousness, he sees everything as it is. As it is means जैसे है वैसे, उसका कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। जैसे हम लोग देखेंगे कोई भी चीज हम लोग देखते हैं, हम लोग उसको कैसे परसीव करते हैं, जैसे हमारा कॉन्शियसनेस होता है। इसको कई बार मैं एग्जाम्पल दिया हूं। जैसे एक चोर बुद्धि का व्यक्ति है तो उसको हर कोई संसार में चोर ही नजर आएंगे। जैसे कोई भगवान के भक्त है, डिवोटी है, तो उसको ये संसार भक्तमय ही दिखाई देगा। सारे सब उसको भक्त ही दिखाई देंगे। सब उनको बोलेंगे, सब उनको दिखाई देंगे कि ये भक्ति है। इवन ट्री को देखेगा तो बोलेगा ये भक्ति है। वैसे ही हम लोग देखे थे प्रहलाद महाराज जब पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम में। प्रहलाद महाराज ऐसे उच्च कोटि के भक्त थे क्योंकि वे मातृ गर्भ से ही इतना भागवतम का श्रवण किए थे श्रील नारद मुनि जी से। करीब 36,000 साल उन्होंने भागवत का श्रवण किया है। तो ऐसे जन्म से ही सिद्ध हैं, तो वो बाहर आते हैं, जिनको देखे उनको कृष्ण के भक्ति हैं, और जहां देख रहे थे कृष्ण ही नजर आ रहे थे, क्योंकि कृष्ण उनके साथ ही हमेशा रहते थे। तो जो कृष्ण भावनामृत में भावित जो व्यक्ति होते हैं, उनको हर चीज आज इट इज जैसे होता है इस संसार में होना चाहिए वैसे ही दिखता है। जैसे कोई खाद्य वस्तु है उनके सामने, फूड स्टफ है कोई व्यक्ति के सामने, अगर वो कृष्ण भावना में भावित नहीं है तो उसको क्या दिखाई देगा? उसको ऐसे दिखाई देगा कि ऐसे जल्दी इसको आस्वादन करके हमारा इंद्रिय तृप्ति करें। लेकिन वही खाद्य वस्तु फूड स्टफ अगर एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को दिखाई देगा तो वो क्या सोचेंगे अपने मन में? वो सोचेंगे ये जो है कृष्ण के हैं, ये कृष्ण से ही बनाया गया ये चीज है, तो इसको कृष्ण को मैं कैसे ऑफर करूं? हाँ, कृष्ण के प्लेजर, कृष्ण के संतुष्टि के लिए मैं कृष्ण को अर्पण करूं, कृष्ण को कैसे इससे आनंद प्राप्ति हो सकता है, वो ये सोचने लगेगा। तो इसलिए ये कृष्ण भावनामृत होने से हम लोग कैसे इग्नोरेंस से बाहर आएंगे, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे।
आज हम लोग देख रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं कि हमारे मन जो है इसके जड़ है। कभी मन चाहता है कुछ ऐसे करें कि हमको और इंद्रिय तृप्ति का ये मिले, हाँ? तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं हमारा मन जो है हमेशा डिस्टर्ब रहता है। इट इज ऑलवेज डिस्टर्ब्ड। कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये करना है कभी वो करना है। और कभी वेदक देखते हैं, वैदिक लिटरेचर देखते हैं, उसमें कर्म कांड ज्ञान कांड देखते हैं। कर्म कांड में बताया जाता है ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, हाँ? तो उसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस आता है। जनरली हम लोग जो कर्मी सोसाइटी होते हैं, कर्मी सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, वे थिंक कैसे हमको कोई कुछ करेंगे कुछ प्रॉफिट मिलेगा, उससे हम लोग आराम से जिंदगी बिताएंगे, हाँ, आराम से रहेंगे, हाँ, अच्छा घर होगा, अच्छा ये होगा। लेकिन फिर फाइनली उसमें सब में फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। बहुत तो हम लोग मेहनत करते हैं, कभी किस पुजारी से जाके बात करते हैं, कभी ब्राह्मण से डिबेट बात करते हैं, ज्योतिष से बात करते हैं, क्या करने से मेरा ग्रह कर चला जाएगा, हाँ, बहुत सारा चीज है संसार में। तो इसलिए प्रभु कृष्ण यहाँ बता रहे हैं जब हमारा मन जो है ये सबसे ऊपर आएगा, when it remains fixed in trance of self realization, then you will have attained the divine consciousness। इसलिए हमारा मन अगर स्थिर रहेगा सेल्फ रियलाइजेशन में, मतलब मन में हम लोगों का हमेशा ये रहना चाहिए कि मैं कृष्ण के दास हूँ। प्रभुपद आगे बता रहे हैं पर्पट में, मैं कृष्ण के दास हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण जो बोले हैं उसी को पालन करना चाहिए, उसी को ही मेरे जिंदगी में उतारना चाहिए। या फिर कृष्ण तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम इतना क्वालिफाइड नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। तो कृष्ण के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके थ्रू हम लोग ले सकते हैं, उनके जैसे प्रभुपाद हैं, इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण। तो प्रभुपाद के लेक्चर्स, प्रभुपाद के जो बुक्स, इट विल गाइड अस। तो हम उसी के माध्यम से हम लोग या फिर प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, शिष्यगण हैं, या प्रभुपाद के शिष्यों के शिष्य हैं जो हमारे सन्यासी लोग हैं, उनके आदेशानुसार हम लोगों को कार्य करनी चाहिए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में ऑलरेडी भावित है, बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं, तो उन्हीं के आदेशानुसार हम लोगों को अगर कर्म करेंगे तो धीरे धीरे विल एलिवेट आवर कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं वो सेल्फ रियलाइजेशन और ट्रांस क्या होता है, तो समाधि क्या होता है। समाधि वो होता है जब when we become fully कृष्ण कॉन्शियस, फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस, वो समाधि। दैट मीन्स हम लोग देख के ही, कोई भी चीज को देख के ही हम लोग उसका मेंटल स्पेकुलेशन ना करें, तो दैट इज समाधि। हर चीज में हम मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, कोई भी चीज देखते हैं मेंटल स्पेकुलेशन आता है मन में। वो मेंटल स्पेकुलेशन इसीलिए आता है बिकॉज वी आर बाउंड, वी आर कंडीशनड। और उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, देन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कंडीशनिंग मतलब, बद्ध मतलब क्या होता है? बद्ध मतलब बंधे हुए। हम लोग सब बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं? बाय द 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। 3 गुण जो है प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुण मतलब क्या होता है? रस्सी, रोप। उस रस्सी से हम लोग बंधे हुए हैं, कभी सत्व गुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी मिक्स्ड मोड, कभी रजो तमो मिलके
वो मोटा रस्सी बनता है उसमें बांधे हुए हैं, लेकिन हमेशा हम लोग बंधे हुए हैं। और जब बंधे हुए हैं तो प्रकृति हम लोग जैसे हम लोग को खींचेगा 3 गुण, वैसे हम लोग कर्म करेंगे। तो इसलिए इससे बाहर आने के लिए हम लोगों को कृष्ण भक्ति जो है हमारे जीवन में उतारना होगा। वी हैव टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। सुबह से शाम तक हम लोगों को वी हैव टू एंगेज आवरसेल्फ, our body, mind, speech, our senses in the service of Krishna. And gradually we will realize, हम लोग धीरे धीरे realize करेंगे कि हाँ जो देख रहे हैं हम लोग धीरे धीरे देख पाएंगे exactly जो चीज है as it is we can see it. The highest perfection of self-realization is to understand that one is eternally the servitor of Krishna, and that one's only business is to discharge one's duty in Krishna consciousness. A Krishna conscious person or unflinching devotee of Lord should not be disturbed by the flowery languages of Veda or be engaged in fruitive activities for promotion to the heavenly kingdom. हेवनली किंगडम को हम लोगों को ऐसा भी नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करने के लिए हमेशा तत्पर रहनी चाहिए। कृष्ण, भगवान कृष्ण के निर्देशानुसार जो भगवत गीता में उनका इंस्ट्रक्शन है उसी को ही फॉलो करनी चाहिए। जैसे कृष्ण बोले हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु, कृष्ण ही खुद बता रहे हैं। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन हम फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग आगे जा पाएंगे। मन मना भव मद भक्तो, हमेशा कृष्ण को याद करनी चाहिए और कृष्ण के भक्त बननी चाहिए, कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए और कृष्ण को हमेशा दंडवत प्रणाम करनी चाहिए। इसको हमेशा हमारे लाइफ में उतारनी चाहिए। तो इसलिए in Krishna consciousness one comes directly into communion with Krishna, and thus all directions from Krishna may be understood in the transcendental state. जब कृष्ण के संस्पर्श में आ गए हम लोग, एक बार ज्वाइन हो गए, लिंक हो गए, तो फिर तो कुछ नहीं चाहिए जीवन। जब तक ये लिंक बना नहीं तब तक हम लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे। और वी शुड गिव आवर एफर्ट टू एलिवेट आवर कॉन्शियसनेस। जब लिंक हो गया तो फिर तो तब उस समय कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कृष्ण जिसको प्राप्ति हो गया उसको इस संसार में और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग देखे थे एग्जाम्पल ध्रुव महाराज का स्टोरी में बताया था एक बार। ध्रुव महाराज गए थे, इसलिए उनको बहुत बड़ा राज्य चाहिए था, इवन ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य, उनके जो पितामह थे ब्रह्मा जी उनसे भी बड़ा राज्य। लेकिन जब भगवान उनके सामने आए उनके तपस्या में प्रसन्न होकर, जब भगवान स्वयं लॉर्ड नारायण आके उनके सामने 4 भुजे में खड़े हैं, फोर हैंड फॉर्म, तो उस समय ध्रुव महाराज जब देखे उनको, उनके सामने भगवान को, तो अति प्रसन्न हुए और स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद भगवान उनको पूछे, ध्रुव बताओ क्या चाहिए आपको। तो ध्रुव महाराज बोले, हमको आप जब प्राप्ति हो गई और क्या चाहिए हमको। क्योंकि कृष्ण सब कुछ है, कृष्ण में सब कुछ है। जो जिसको कृष्ण प्राप्ति हो गया उसको और क्या चाहिए जिंदगी में, लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज बोला हमको और कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज हम तो आए थे ढूंढ कर टूटे हुए शीशे के लिए, लेकिन हमको जब डायमंड मिल गया तो फिर मैं टूटा हुआ शीशा को क्यों चाहूंगा, जरूरत नहीं। तो उन्होंने फिर बोले कि और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अति प्रसन्न होकर नारायण विष्णु उनको ध्रुव लोक प्रदान किए, गिफ्ट दिया उनको ध्रुव लोक, लेकिन उनको चाहिए नहीं था। जब कृष्ण प्राप्ति हो गए तो क्या चाहिए। तो ऐसे ही हम लोगों को धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़नी चाहिए। जब कृष्ण प्राप्ति होंगे
तो जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। One is sure to achieve results by such activities and attain conclusive knowledge. One has only to carry out the orders of Krishna or his representative, the spiritual master. That should be the goal of our life. We should carry out the order of Krishna or the order of the representative of Krishna or the spiritual master. That should be followed properly. Whatever, like Prabhupada said us, chant 16 round every day, follow 4 regulative principles. That's all. And read my books. इतना ही हम लोग अगर कर पाएंगे हमारे जीवन में, हमारे जीवन को सुधार सकते हैं। और बाकी भगवान भक्तों के संग रहकर भक्तों की सेवा करना, बस हो गया, लाइफ इज सक्सेसफुल। इतना ही करना है हमको। हाँ? तो इसलिए हम लोगों को प्रभुपाद बहुत सरल मार्ग दिए हैं, जिसके थ्रू हम लोग हमारे जीवन को परफेक्ट बना सकते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग। हरे कृष्णा। So I'll request Kundan has to go to lab, so Kundan you can speak and go. Huh? Hare Krishna. Then we'll. हरे कृष्ण। थैंक यू सर, सर ने ऑलरेडी सारा कुछ एक्सप्लेन किया और ऑलरेडी हम लोग सर ने भी बताया था कि ऑलरेडी समाधि जो है, समाधि के बारे में कि हम लोग को जो माइंड जो हम लोग का अगर हम लोग फिक्स, अगर हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में करते हैं, तभी हम लोग में जो है अचीव कर पाएंगे जो एक्चुअल मीनिंग है समाधि का। तो हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में ही रहना चाहिए, और हम लोग के जो है हेवनली प्लेनेट और हाईली प्लेनेट जो भी है, उस पे हम लोग को सेंट्रलाइज करके हम लोग को नहीं चलना चाहिए। हम लोग को सिर्फ ये मान के चलना चाहिए कि हम लोग को कृष्णा कॉन्शियस जो लोटस फीट है, हम लोग को वो सिर्फ अचीव हो, तभी हम लोग जो है एक्चुअल जो समाधि का मतलब है वो हम लोग ये कर पाएंगे। और उसके लिए हम लोग को जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं और जो श्रीला प्रभुपाद जो पर्पट दिए, अगर हम लोग वो सेल्फ एक्सप्लेनरी होता है, जिसमें हम लोग ये समझ पाते हैं कि कैसे हम लोग अचीव कर पाए। और सर ने जैसा बताया 4 रेगुलेटिव जो प्रिंसिपल है, जस्ट हम लोग उसको फॉलो करेंगे, तभी हम लोग जो है भगवान के लोटस फीट पे हम लोग रह सकते हैं। यही चीज आज देखे सर। हरे कृष्ण सर। Hare Krishna. Thank you, Kundan. Beautiful. So Kundan, you can leave. Huh? Hare Krishna. Hare Krishna. Atmaram Prabhu, please. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आज जैसे चर्चा हुआ कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसको दुनिया वैसी ही नजर आती है। तो ये चर्चा हुआ कि जिसका दिमाग जहाँ लगा रहता है, जिसको अगर जो खुद गलत है उसको पूरा दुनिया गलत नजर आता है। ये सारा दुनिया गलत है, मैं ही केवल एक सही हूँ, उसको मन में तो ऐसा लगता है, मगर कभी अपने अंदर नहीं देखता है कि हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत हैं। हमेशा दूसरों को दोष पहुंचाते रहता है। तो ऐसे कई व्यक्ति नजर आते हैं, जैसे समाज में बहुत जगह देखा जाता है। हर आदमी दूसरे को दोष देते रहता है। दूसरे से जब हो जाता है तो सरकार को दोष देते रहता है कि यहाँ पे इतना कचरा है, यहाँ इतना गंदगी है, यहाँ ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, पानी जाने का रास्ता नहीं है। पूरा दुनिया एक दूसरे को दोषारोपण करते रहता है। तो ये नहीं कि उसमें जैसे कि समाज का काम है कि सब चलो एक दिन सफाई अभियान ही कर ले, पूरा गली मोहल्ला साफ हो जाएगा। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि खुद कार्य नहीं करना और दूसरे को हमेशा दोषारोपण करना, ऐसा लोग करते रहते हैं। उसी तरह फिर जो है कि लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सन होता है, वो अपने ऊपर जो हो रहा है उसके लिए दूसरों को दोष नहीं देता है। जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है, और
सबसे मेन बात है कि इग्नोर नहीं करता है कोई भी काम को, कि जैसे कि स्टेट ऑफ इग्नोरेंस से बाहर होता है। अ, जैसे कि कोई भी कार्य है उसको जब तक हम करेंगे नहीं तब तक वो होगा नहीं। ऐसे भी न्यूटन्स का भी नियम है कि मतलब जब तक हम कोई फोर्स लगाते नहीं है तो कोई भी वस्तु अपने स्थान से हटेगा नहीं। तो कहने का क्या मतलब है कि जो जब भी काम हम लोग जो भी काम है अच्छा ही काम है, तो जब तक हम लोग अच्छा काम करना शुरू नहीं करेंगे वो अच्छा काम होगा नहीं। बहुत लोग देखते हैं कि मतलब जो है कि सपना तो बहुत बड़ा-बड़ा देखते हैं मगर काम उसके लिए नहीं कर रहे हैं। अपने आप कोई कर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग बार-बार ये करते हैं कि हमें अपना कर्म, अपना ड्यूटी बहुत अच्छे से करना चाहिए। दूसरा प्रकार का कर्म करने का क्या मतलब है कि एक कर्म कांड की तरफ आदमी ज़्यादा झुका हुआ रहता है। वहाँ पे तोल-मोल भाव करते रहता है भगवान से ही कि हमको ये मिल जाएगा तो हम ये करेंगे, ऐसा कर लेने से वो मिलेगा। तो ये सब चीज़ हमेशा ही देखा जाता है। तो अ, वो कर्म कांड में हमेशा ही कभी उसका मन भरता नहीं है। एक चीज़ मिल गया तो उसके बाद फिर कहेगा कि और ये मिल जाएगा तब हम खुश होंगे। फिर ये मिल जाएगा तो ये खुश होंगे। कहने का क्या तात्पर्य है, अगर हर व्यक्ति अपना एक मकान भी बनाते रहता है। अब देखिए मकान का कोई अंत नहीं है। एक फ्लोर बना लिया तो अब कहेगा कि थोड़ा और कमाएँगे तो उसके ऊपर भी बना लेंगे। तो इसी तरह मकान का तो फ्लोर बढ़ते रहता है मगर उसका मन का जो फ्लोर है वो घटते रहता है। मन जो है वो हमेशा ही दुखी रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब किसी का है अगर 4 लड़का ही है मान लीजिए कि तो एक लड़का बहुत अच्छा कर लिया तो बहुत अच्छा बात है। मगर उससे खुशी जितना नहीं है कि 2 लड़का बढ़िया नहीं कर पा रहा है, उससे दुखी है। तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं अगर हम देखें इस सांसारिक जीवन में हर व्यक्ति ही दुखी है। सबका दुखी रहने का जो है इसीलिए इसको दुखालय भी कहा गया है। और सब कुछ अगर है तो अपना शरीर में ही दुःख हो गया है। तो हर व्यक्ति दुखी है, दुखालय इसीलिए नाम दिया गया है। मगर इसी में अगर हम अपना मन को स्थिर रखें, मन की चंचलता को दूर करें, मन को जो है भगवान के चरणों में अगर हम हमेशा लगा के रखें और हमेशा अपने से नीचे को देखें, जैसा मैं अपने आप को हमेशा एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ, हर व्यक्ति अपने मन को खुद समझाता है, तब आगे जाके कोई कार्य करता है। कि हमको जो मिला है, वो बहुत लोगों को नहीं मिला है। और भगवान ने जो दिया है बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। हमें जितना मिलना चाहिए उससे ज़्यादा दिया हुआ है। अगर हर व्यक्ति उस हिसाब से सोचे, तो उससे नीचे भी बहुत आदमी हैं, लोग सड़कों पर सोते हैं, रात को इस ठंड में। अगर हम जाके देखें बहुत लोग प्लेटफ़ार्म पे, स्टेशन पे, मंदिरों में, हर जगह सोते हैं। तो भगवान हमको कितना कुछ दिए हैं, इतना अच्छा रहने के लिए दिए हैं, इतना अच्छा खाने के लिए दिए हैं, बढ़िया पानी तक नहीं मिल पाता है लोगों को। तो हमें हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान की कृपा से हमको इतना चीज़ें मिला हुआ है और उसमें अपने मन को स्थिर रखते हुए जो है कि भगवान को अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमेशा रहना चाहिए। तो वो कैसे होगा? वो बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, अचानक से नहीं हो जाएगा क्योंकि हमारा जो मन है, मन में बहुत ज़्यादा हमेशा वो ज़्यादा जो गलत सोचते हैं, तो गलत का परत ज़्यादा पड़ा हुआ है मन के ऊपर। तो मन का जो परत है जो मैल है उसको धोने के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस में प्रभु जी आपने पहले भी बताया था बहुत अच्छा एबीसीडी। तो जो समाधि है, समाधि का मेन मतलब आज बताया गया कि समाधि का मेन मतलब है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के अपना काम करना। हम प्रभु के एक अंश मात्र हैं, हम उनके ही दास हैं। तो उनके दासत्व की भावना हमेशा रखना है और जो है वो तभी होगा जब हम अच्छे भक्त के संग में रहेंगे, कि अच्छी प्रभुपाद की लिखी हुई किताबें पढ़ेंगे और चैंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँगे, तो मन में भी चैंट करना है। तो ये सब है प्रभु जी। एक आदमी जैसे किसी को पहले बहुत डाउट होता था कि बोला कि माला फेरते हुए हम बहुत आदमी को देखे हैं। माला फेर लिया उसके बाद जो है कि फिर अपना गलत-सलत काम करते रहता है। तो
फिर दूसरा कोई और समझाएगा कि भगवान का नाम ही लेना है तो गिनना है क्यों गिन के लेना है। तो जैसे मैं उसको समझाया कि अच्छा ये बताओ तुम रात को कितना रोटी खाते हो? कहा कि 4 रोटी खाते हैं, 5 रोटी खाते हैं। तो किसी दिन 1 रोटी दे दें तो क्या होगा? तो कहेगा कि नहीं अभी थोड़ा-सा भूख रह गया है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि जैसे अभी हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो हम जान रहे हैं कि 1200 किलोमीटर है। तो उसी हिसाब से जा रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि एक कोई न कोई की गिनती गणना बनाया गया है। अगर उससे हम कम कर रहे हैं तो नहीं हो पाता है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर 1 राउंड हम माला करते हैं, 1 राउंड में 108 बार भगवान का नाम लेते हैं, तो कहने का मतलब अगर हम मन में बना लें कि हमको 1 माला करना ही है डेली, तो कम से कम 108 बार तो लीजिएगा आप, 107 नहीं लीजिएगा। 2 माला करना है तो वैसे बढ़ाइएगा। तो इस हिसाब से जो है, एक हमारा जो है कम से कम घंटा 2 घंटा इसमें लगा रहे, इसी के लिए ये काउंटिंग है। और भी काफ़ी महिमा होगी, जितना मैं समझता हूँ उतना प्रयास करता हूँ। तो समाधि का मेन मकसद क्या है कि अपने दिमाग में, अपने मन में हमेशा कृष्णा कॉन्शसनेस को बनाए रखना और हमेशा ये धन्यवाद करना कि जो मिला है वो बहुत मिला है और ऊपर का भी कोई अंत नहीं है, नीचे का भी कोई अंत नहीं है। इसीलिए जो है मन को हमेशा विचलित नहीं करते हुए अपना कार्य करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Thank you, very beautiful explanation. Hare Krishna. Hare Krishna, Arvind Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। आज जो हम लोग चर्चा किए हैं वो हमारा चर्चा हुआ है मन के विषय में। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं हमारा मन बहुत चंचल है, यह सारा खेल मन का है, यह सारा क्रिया कराया जो है वो मन का है। जब यह मन हमारा सबसे ऊपर आए तो अच्छा होगा। प्रभुपाद का जो बुक है वो हमारे लिए बहुत उपयुक्त। हमारा मन जो है वो कंट्रोल कैसे होगा, विषय यह। हमारा मन कंट्रोल करने के लिए जो प्रभु जी ने बताए हम लोगों को, रजोगुण, तमोगुण, निजोगुण, ये तीनों गुणों का ज्ञान जिस साधक को है वो मन को कंट्रोल करने में सक्षम साधक। हम लोग भगवान प्रहलाद प्रभु के बारे में कथन किए, उसका बहुत भक्तिमय भावना है। भगवान कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम था उनको, उनके प्रति कैसा समर्पण था। उनका संस्कार देखिए, माता के गर्भ से ही वो भक्ति में थे। जब प्रहलाद प्रभु गर्भ में थे तब से ही उनको भक्ति का ज्ञान श्रवण होता था, जबकि उनके पिताजी राक्षस कुल के थे। और संस्कार जो होता है वो माता के गर्भ से ही होता है बच्चे में। मन से ही होता है संस्कार का, ये जो होता है संस्कार का वो मन से ही होता है। जो भी बच्चा माता के गर्भ में रहता है उसकी माँ अगर भक्ति करती है, भगवत गीता श्रवण का पाठ करती है, सत्संग में जाती है, तो बच्चे उसको श्रवण करता है, बच्चे सुनता है। और ये बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़े राजा थे, उनकी पत्नी भी गोरी थी, वो भी गोरे थे। तो बच्चा उसका काला पैदा हो गया। तो बच्चा काला पैदा हुआ तो राजा को बड़ा संभव हुआ कि हम भी गोरे, तुम भी गोरी हो, तो ये बच्चा कैसे काला हो गया जी?
बड़े बड़े आदमी को बुलाया गया, उसको विश्वास नहीं हुआ, तुम्हारा किसी के साथ गलत संसर्ग है, तुमने गलत किया हुआ होगा, तो ये बच्चा काला हुआ है। हम भी गोरे, तुम भी गोरे, ये बच्चा कैसे काला हो गया पूरा? डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर बेचारा परेशान, बोले होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, हो जाता है। और वैज्ञानिक को बुलाया गया, वो भी बोला कि हाँ ऐसा होता है कभी कभी, ऐसा कोई बात नहीं। फिर बोला राजा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हम आपके बात से संतुष्ट न हैं, एक बहुत प्रसिद्ध साधु हैं उनको भी बुलाया जाए। तो बहुत बड़े महात्मा थे गांव में, उनको भी निमंत्रण दिया गया। आया महात्मा, बैठे, महात्मा उनके घर को भ्रमण किए। तो जिस घर में वो रहती थी, जिस घर में वो महिला रहती थी, वो घर जब वो महात्मा गए हैं तो देखते हैं क्या कि वो बहुत बड़ा कैलेंडर लगा हुआ है, उसमें एक बहुत मोटा काला पहलवान है, जो कि बहुत बड़ा सामान उठाए खड़ा है, बॉडी बिल्डर की तरह, बहुत काला क्रूट। तो महिला सोते समय रोज उसको देखती थी, जब भी सोती थी सिराना पे ध्यान वहीं चला जाता था, ध्यान वहीं चला जाता था। तो वो राजा को बुलाए, राजा साहब यहाँ आइए महाराज, ये सारा खेल किया कराया मन का है इनका। बोला ये कैसे हो गया? बोला वो तस्वीर देख रहे हैं आपने जो लगाया है हनुमान जी का, वो मैं ये आपकी धर्मपत्नी रोज उसको देखती है, रोज देखती है, जब भी सोती है ख्याल उसका वही रहता है कि मेरा बेटा ताजा पहलवान हो, काला मोटा हो। बस वही देखने के कारण इनके बच्चा पर यह प्रभाव पड़ा है कि बच्चा आपका ऐसा हो गया है, ये पत्नी आपकी जो है चरित्रहीन नहीं है, अच्छी। तो पत्नी बोलती है हाँ 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 महात्मा जी ऐसा ही तो है, हम तो रोज देखते ही थे, हमको तो यही स्मरण में रहता था कि मेरा बेटा भी मोटा ताजा पहलवान हो। बोला वही मन का प्रभाव जो है आपके बच्चे पर पड़ा है, आपकी पत्नी। ये सारा खेल कराया मन का है। मन पर एक कथा और भी है, बहुत ही स्मरणीय कथा है। एक कथा है, एक रेलकर्मी थे, बेचारा भगवान कृष्ण के भागवत भजन में बहुत समर्पण भाव, बहुत समर्पण भाव। जब भी उनको टाइम मिलता भगवान श्री कृष्ण के कथा में चले जाते। पत्नी कहती आप तो श्री कृष्ण करते हैं, इतने गरीब हैं और आपको अपना बाल बच्चा ध्यान नहीं रहता है परिवार का, हमेशा कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं, जब देखे झोला खा के चल दिए हैं, साग सब्जी लाने का भी ख्याल नहीं रहता है आपको घर में, कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। वो बोलते थे दुनिया में क्या रखा है जी, तुम भी श्री कृष्ण कहा करो, फायदा होगा, नाम जप ही बहुत बड़ा चीज है। तो ड्यूटी में चले गए वो बेचारा, ड्यूटी में गए तो ड्यूटी में श्री कृष्ण करते रहते थे, वहाँ भी अपना काम करते थे, श्री कृष्ण करते रहते थे। तब उनको सब जो है ना ये मतलब बाबा जी बुलाने लगे, ये बाबा जी हैं, ये बाबा जी। तो एक बार की बात क्या है, वो कथा श्रवण में इतने भाववित हो गए, उनको अपने टाइम का पाबंद ना रहा कि हमें ड्यूटी पर जाना है। वो गेटमैन का काम करते थे बेचारे, उनको ख्याल नहीं रहा कि हमको ड्यूटी पर जाना है। तो भक्ति करते हुए जब आरती हो गई है तब उनको श्रवण आया है, अरे बाप मेरा तो ड्यूटी था, अभी मेरा ड्यूटी कैसे हो गया होगा, बाप रे बाप। वो क्या कि आरती की और साइकिल उठाए और दौड़ते हुए गए, दौड़ते हुए गए। तो वहां पर देखे दूसरा गेटमैन आ गया है, वो काम कर रहा है। तो वो बोलते हैं अरे मैं ड्यूटी पे मेरा नहीं आ पाया आज, जो है देखो ना मेरा ड्यूटी पे नहीं आया आज, गाड़ी शायद तुमको आज नहीं कर देंगे। कैसा पागल आदमी हो, तुम ड्यूटी पे आए हो? और मैं ड्यूटी पे आया हूँ। हाँ तुम ड्यूटी पे आए हो, तो ऐसा हो नहीं सकता है। दो चार लोग से भी पूछा, दो चार लोग भी ने कहा कि हाँ भाई सही बात है, आपने ड्यूटी पे आया है। तो मैं नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे, ये रजिस्टर देखो, रजिस्टर जब उल्टा के देखा वो सेम टू सेम उसी का सिग्नेचर किया हुआ था वहां पे, सेम टू सेम उसी का सिग्नेचर। वो देख कर रोने लगा
कि प्रभु जी को मेरे लिए इतना सारा कष्ट करना पड़ा, प्रभु जी मेरे लाज रख लिए, मेरी नौकरी को रख लिए, मैं यहाँ में नौकरी करूंगा ही नहीं, मेरा यह नौकरी अब प्रभु जी में ही जो है अब रहेगा। और वो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति भोर में लीन हो गए, परम प्रभु पद को प्राप्त किए। ये होता है मन हमारा। अगर हमारा मन भगवान में लिप्त रहेगा और हमेशा रहेगा, तो हमारे द्वारा अगर कोई काम छूट भी जाता है, अगर कुछ रह भी जाता है, तो प्रभु जी उसको पूरा कर देते हैं। प्रभु जी की हम लोग पे बहुत करुणा रहती है, वो हम लोग पूरा कर देते हैं। तो ये मन से हमारा पूरा स्मरण रहना चाहिए, मन से ध्यान रहना चाहिए प्रभु जी का, सब प्रभु जी ही कर देते हैं। जय श्री कृष्ण प्रभु जी, जय श्री कृष्ण। हरे धन्यवाद अरविंद प्रभु, बहुत अच्छा स्टोरी सुनाए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा धनंजय। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा तुमाराम प्रभु, हरे कृष्णा अरविंद प्रभु। तो very nice discussion that I learned today. There that today's main part convey that how we can attain the divine Krishna consciousness. So for that, there is two things is more important that Prabhupada explained here. First is the fixed in mind and to attain the self-realization. By the way, we can attain the divine consciousness. So how we can fix in self-realization, that we have read earlier also, earlier part that Prabhupada will mention that to attain or to achieve self-realization, one thing that is to understand the Krishna, and second thing to build up the relationship with Krishna. So that is here Prabhupada mentioned that the samadhi. So when one can fully realize in Krishna consciousness, this state is called the samadhi. So that is the realized the Brahman, Paramatma and the Bhagavan. And that this highest perfection of self-realization is the to understand one is eternally the servitor of the Krishna. And that is the only business to discharge the duties in Krishna consciousness. तो हम लोग को हमेशा कृष्णा को सर्विटर बन के कृष्णा को सेवा देना चाहिए। और we cannot approach directly to the Krishna, because we have to approach our spiritual master, and spiritual master can come to us to the lotus feet of Krishna. That's why our service to the service should be in the order of the spiritual master, directly to the Krishna or to the devotees or to our spiritual master. तो इसलिए रिगार्डिंग दिस प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर का एक शरणागति भी है कि कृष्णा से तुम्हारो कृष्णा दीते पारो तुम्हारो शक्ति आछे. So we cannot approach directly to the Krishna. So the Krishna, the spiritual master can give us the platform to reach to the Krishna's lotus feet. और इसलिए हमेशा we should devotional service to our devotees and the Krishna. And Atmaram Prabhu also gave the very nice example that how we can fix our mind, that always we thinking that what we don't have rather than what we have. तो एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे पास क्या नहीं है, हम लोग सोचते हैं, बट वी शुड ऑलवेज always glorify to the Lord that what we got that enough. Because हम लोग जब कंपेयर करेंगे किसी के साथ जो डिसेबिलिटी पर्सन होता है, उनके पास ना हाथ रहता है ना पैरों रहता है, but we think if we compare to them, we are too lucky that we have everything, and we have everything, and we can do our seva to the Krishna, and we can glorify to Krishna that Krishna give us this body. So that is why our purpose is the main purpose of the life is that, sir, kahi bar bhi bole
कि मनुष्य जन्म दुर्लभ मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विषय खाइनु. So that's why मनुष्य जन्म very दुर्लभ है, very rare this life. So we should always give our devotional service to the lotus feet of the Lord, to our devotees and to our spiritual master, and by the way we can attain the divine Krishna consciousness, because that is the bhakti yoga is the shrestha yoga in any other yoga. So that I can learn today. Hare Krishna. Sir. Hare Krishna. Thank you, Dhananjay. Beautiful. Hare Krishna. Beautiful explanation. Hare Krishna. Abhinav. हरे कृष्णा सर। तो आज हमने पढ़ा कि जो हमारा कंडीशन सोल है, जो हमारा मन है, वो हमेशा मटेरियलिस्टिक प्लेजर को प्राप्त करने के लिए भटकता रहता है, और जो भी हम कर्म करते हैं वो 3 मोड ऑफ मटेरियल लाइफ जो है उसके अनुसार ही होता है। जो हम लोग हैं एक कठपुतली की भांति, मतलब ये 3 मोड्स जो कि जिसको रोप कहते हैं, उससे बंधा हुआ है। और ये जो 3 मोड्स के बारे में हमने पढ़ा था, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो जिस समय जो मोड डोमिनेट करता है उसके प्रभाव में, मतलब उसी के प्रभाव में उस समय हम कार्य करते हैं। हाँ, और इसलिए ज़रूरी है कि जो हम हैं, हम अपने इंद्रियों को वश में करें, अपने मन को कंट्रोल में रखें। और जब हम इस स्टेट ऑफ में होते हैं, तो हम वैदिक लिटरेचर में भी सिर्फ कर्मकांड ढूंढते हैं जिससे हमें मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स हो सके। पर जो ट्रू डिवोटीज होते हैं वो इन सब से मुक्त होते हैं। दे हैव रियलाइज्ड द ट्रू व्हाट इज ट्रू ब्रह्म, परमात्मा कौन है और उनसे क्या रिलेशन है हमारा, एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। तो ये हमें पता होता है। जो डिवोटीज होते हैं उन्हें पता होता है कि देयर ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज दैट दे आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। एंड जब ट्रू डिवोटीज कृष्ण की सेवा करते हैं तो वो किसी मटेरियलिस्टिक वस्तु की आशा से नहीं करते हैं। जैसा कि हमने ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल से देखा था कि यद्यपि उन्हें मटेरियलिस्टिक जो राज्य की चाह थी, पर जब उन्हें भगवान के दर्शन हुए तो वो सब कुछ भूल गए थे कि उन्हें क्या मांगना है। बस वो इतने ज़्यादा प्रसन्न हो गए भगवान के दर्शन से ही। और डिवोटीज को ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने डिवोटीज का पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि कृष्ण इतने मर्सीफुल हैं। जैसा कि हमने कल देखा था महेंद्रपुरी जी के एग्जाम्पल से कि वो कृष्ण हर समय ही उनको पता होता है कि उनके डिवोटीज को क्या चाहिए, और वो सही वक्त पे उन्हें देते भी हैं। तो उन्हें किसी मटेरियलिस्टिक वस्तु के पीछे भागने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो यही हमने पढ़ा सर आज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हम लोगों ने जो पिछले क्लासेस के अंदर भी जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है वेदास के अंदर जो है कई कर्म कांड दिए गए हैं जिससे कि जो है हम लोग हेवनली प्लैनेट के अंदर जो है हम लोग प्रमोट हो सकते हैं। मगर हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हेवनली प्लैनेट्स के अंदर भी जाके जो है हम लोग जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे जो है हम लोग बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि हम देखते हैं, सर ने जो बताया भी था कि इवन ब्रह्मा जी का भी जो लाइफ साइकिल का जो है वो भी एक जो है फिक्स रहता है, एक ना एक बार जो है उनका भी मृत्यु जो है होना वो निश्चित है। तो इसलिए जो है हम लोग को यही प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जो है वो कृष्ण कॉन्शियस में रहें, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि जो कर्म कांड जो दिए गए हैं उनको सही से फॉलो करना, ग्रंथों का अध्ययन करना भी जो है आज के टाइम पे जो है वो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, और कर्म कांड जो दिए गए हैं उनको भी शुद्ध रूप से जो है फॉलो करना जो है हम लोग के लिए वो पॉसिबल नहीं रहता है। इसलिए जो हम लोग जो अपनी जो इंद्रियां हैं उनको जो है वो तृप्ति के लिए जो है हम लोग अलग-अलग जो है वो प्रयास करते हैं, और इसलिए जो है हम लोग का जो माइंड है वो हमेशा जो है वो फ्रस्ट्रेट रहता है। इसलिए हमको जो है ये प्रयास करना चाहिए कि जो है हम लोग कृष्ण भावनामृत में रहें और अपने जो सेंसेस है, अपना जो माइंड है उसको जो है हम लोग कंट्रोल में रखें, जो कि 3 मोड्स है, मटेरियल,
जो नेचर के जो 3 मोड्स हैं, उससे जो है हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग उससे बाहर आ सकें। और आगे जो है प्रभुपाद जो है हम लोग को बता रहे हैं कि सेल्फ रियलाइज़ेशन का मतलब ये है कि हम लोग ये समझें, हम लोग ये जानें कि हम लोग जो हैं वो भगवान के दास हैं और जो भगवान के द्वारा जो दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको जो है हम लोग को फ़ॉलो करना चाहिए। और उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम लोग डायरेक्टली नहीं समझ सकते हैं, इसलिए जो है हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, गुरु हैं, उनसे जो है हम लोग समझें कि किस तरह से जो है हम लोग अपने ये जो राह है, हम लोग का जो पथ है, उसके अंदर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही जो डिवोटीज़ हैं, उनके जो है हम लोग सानिध्य में रहे, उनकी जो है हम लोग सेवा करें, क्योंकि भगवान को जो है ये बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर कोई उनके भक्त की अगर कोई सेवा कर रहा है, तो इसलिए जो है हम लोग को ये सब करने का जो है प्रयास करना चाहिए, ताकि भगवान की जो है हम लोग पर कृपा हो सके, जो डिवोटीज़ हैं उनकी जो है हम लोग को कृपा मिल सके, ताकि जो है हम लोग कृष्ण भावनामृत की जो राह है, कृष्ण कॉन्शियस की जो राह है, उस पे जो है हम लोग आगे चल सकें। आज ये देखा सर। हरे कृष्णा सर। ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा। रोहित। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। आज के परपट में हम लोगों ने यही सीखा कि हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम लोग का मतलब मेंटलिटी भी वैसा ही हो जाता है। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये भी देखे थे कि जैसे वो क्या नाम था, वो बाल भक्त जो थे, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उनका नाम मिस करे प्रभु। वो 36,000 वर्ष मतलब गर्भ अवस्था में ही उन्होंने प्रहलाद प्रभु, ये प्रहलाद प्रभु गर्भ अवस्था में ही 36,000 वर्ष तक मतलब प्रभु के बारे में उन्होंने अथी कर लिया, भक्ति कर लिया। तो जब वो पृथ्वी पर आते हैं और मतलब संसार में आते हैं, तो वो जो भी चीज़ देखते हैं तो उन्हें सब चीज़ भक्ति में ही लगता है। तो वो सब चीज़ उनको ऐसा लगता है कि ये मतलब कृष्ण भक्ति में ही है सब चीज़। इससे हम लोग को यही मतलब सीखने के लिए मिलता है कि हम लोग जिस तरह का एनवायरमेंट में रहते हैं वैसा ही होता है। और प्रभु जी हम लोगों ने ये भी सीखा कि समाधि के बारे में, उस पिछले क्लास में भी सीखा था और आज भी सीखे कि मतलब हम लोग को कर्म कांड से बाहर निकल करके कैसे प्रभु का ध्यान करना चाहिए। और प्रभु का ध्यान एक समाधि के रूप में भी होता है, जैसे कि हम लोग अपना जो भी कॉन्शसनेस है वो उसके साथ हम लोग अपना काम करें। जी हरे कृष्ण प्रभु, आज यही सीखा। Very much beautiful discussion today. Hare Krishna. We'll stop here today. Thank you very much. श्री श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। I hope everyone